So first thing is functions of blood. I have already started the recording बेटा, अभी बोला मैंने, ठीक है? देखो किसकी, who told you बेटा? I am recording my classes from a very long time. Don't take tension about the voice. Okay. Transportation. If I say transportation of gases, transportation of nutrients, transportation of hormones, right? All these functions are performed by blood. So important role in transportation. In immune response, agree? Because WBCs are there and WBCs are acting against the pathogens, so it provides immunity. It helps in blood clotting and prevents excessive loss during injury. So all these functions are performed by blood. Major functions are performed by blood. Blood के जैसा ही, just like blood, we are having another fluid connective tissue. Then the name of the another fluid connective tissue is lymph. So it is also fluid in nature. ये भी कैसा है nature में? Fluid है. कहाँ से flow करता है? Blood is going to move from blood vessels, right? Blood कौन सी vessel से flow करता है? Blood vessels से. We call them blood vessels. There are three type of blood vessels if you remember. Artery, veins and capillaries. Yes, right. Just like that, for the movement of lymph also, our body is having what? Lymph vessels. lymph कहाँ से move करता है? Lymph vessels के through move करता है. Lymph is basically pale yellow in color. And how this lymph is formed? This lymph is formed because of leakage from the blood capillaries. You understand leakage? लिम्फ हमेशा ब्लड कैपिलरीज से लीकेज की वजह से बनता है, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज आर व्हाट? ये फाइन, बहुत पतली कैपिलरीज होती है, यू कैन से वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं. और जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, सभी सेल्स के पास सप्लाई कौन करता है? These blood capillaries are moving to all the cells, right? ऑक्सीजन सप्लाई करती है सभी ब्लड सेल्स को, and it is responsible for carrying carbon dioxide from the cells. तो जब ये ब्लड कैपिलरीज मूव करती हैं सभी सेल्स के पास, टिश्यूज के बीच में, तो इनसे वाटर, स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस लीक आउट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं बाहर. लीकेज, जैसे पानी की पाइप में लीकेज होती है, छोटे छोटे स्पेसेस से पानी क्या करता है? बाहर निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है. इसी तरीके से जो लिक्विड है और स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं, वो लीक आउट होते रहते हैं. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दीज ब्लड कैपिलरीज. और लीक आउट होके कहाँ एंटर करते रहते हैं? बिटवीन द टिश्यू स्पेसेस. टिश्यूज के बीच में जो खाली जगह है वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं. और इसी लीक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं. तो लिम्फ एक्चुअल में किसका कंपोनेंट है? दोबारा बोलो. टिश्यू स्पेसेस, टिश्यूज के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर. तो दिस इज ब्लड एक्चुअली. तो लिम्फ किसके लीकेज से बना है? बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ ब्लड. तो लिम्फ इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड बिकॉज दैट इज फॉर्म्ड because of the leakage of blood from the
blood capillaries, right? But there are some components of blood जो easily leak out नहीं हो पाते हैं. For example, if I say lymph is not having RBCs, RBCs leak out नहीं हो पाती हैं. If RBC are not there, तभी तो pale yellow color है ना. अगर RBCs leak out होती तो lymph का कलर कैसा हो जाता? Red. Yeah. So yes, good. So RBCs and platelets leak out नहीं होती है. That means lymph is not having RBCs and platelets. ठीक है. Rest of the things are going to be present. What occurs in the rest of the things? Water. हाँ, yes, WBCs, proteins, some hormones also. Yes, glucose, amino acids. So almost same composition as blood, but it is devoid of only RBCs and platelets. Ions होते हैं, ठीक है. WBCs है, water है, maximum water is there, almost 95% water is there in lymph. सिर्फ आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं होती है, बाकी सारी चीजें लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, सी दिस लिम्फ इज कलेक्टिंग ओवर हियर, लगातार इकट्ठा होता जा रहा है लिक्विड. तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जितनी भी आसपास की सेल्स है वो उसमें सबमर्ज हो जाएंगी. यू अंडरस्टैंड? सबमर्ज मींस डूबना. अगर लिक्विड भरता जा रहा है तो सेल्स क्या होंगी, पानी में डूब जाएंगी, इस लिक्विड में डूब जाएंगी. तो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट दिस लिम्फ फ्रॉम हियर. ये जो लगातार लिक्विड लिम्फ फिल होता जा रहा है, इसको निकालने की भी तो जरूरत है. तो यहाँ से बाहर निकाला जाता है. तो इसमें कौन हेल्प करती है? lymph capillaries. Who will help? Lymph capillaries. They collect lymph from टिश्यू स्पेसेस. टिश्यूज के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है वहां से लिम्फ को कलेक्ट करके बाहर लेके आती है. तो लिम्फ कैपिलरीज कैसी होंगी? वेरी फाइन वेसल्स. बट ये किसको कैरी कर रही है? लिम्फ को कैरी कर रही है. एंड दीज लिम्फ कैपिलरीज दे जॉइन, all the lymph capillaries join together to form what? Lymph vessels. Yes, vessels. ज्वाइन करके क्या बना लेती हैं? लिम्फ वेसल्स बना लेती हैं. तो एक्चुअल में क्या लेके आई है? सारा का सारा लिम्फ अब कहाँ एंटर कर दिया है? लिम्फ वेसल्स में एंटर कर दिया है. एंड दीज लिम्फ वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ lymph. Now what is the destination of this lymph, where this lymph is going to do? Actually these lymph vessels, they further joins with the blood vessels. तो लिम्फ किससे रिलीज हुआ था? ब्लड से लीक आउट हुआ था. और लास्टली इस लिम्फ को कहाँ ऐड कर दिया जाता है? अगेन टू द ब्लड वेसल्स, वापस से ब्लड वेसल्स में एड ऑन कर दिया जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग दिस लिम्फ? थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, इट माइट हेल्प यू. से बेटा, दीज आर द सेल्स. ओके, 2 मिनट के लिए आराम से सुनना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. These are the cells and this is the lymph, or you can say liquid that is present between the space present over here. ठीक है, ये lymph है. Now this is lymph में blood capillaries ने क्या क्या leak out कर दिया है? Glucose, amino acids, some important proteins, some hormones. Agree? तो बिल्कुल ब्लड से आए हैं, बिल्कुल ब्लड से आए हैं. आई टोल्ड यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ द लीकेज फ्रॉम द ब्लड. ये सिर्फ ब्लड से आते हैं और कहीं से नहीं आते. ठीक है. कुछ एंटीजेंस भी कई बार आके इंटरैक्ट हो जाते हैं. आई टोल्ड यू सम ऑफ द एंटीजेंस दे मूव टू द टिश्यूज आल्सो. तो बीच में कुछ एंटीजेंस भी एंटर कर गए हैं. ये कुछ डेड सेल्स भी यहाँ पर एंटर हो जाती है. सेल्स ही तो है, सेल्स एंटर होती जाएंगी, डेड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ. यहाँ से क्या राइज होंगी? लिम्फ कैपिलरीज. So this is one lymph capillary, second lymph capillary, third lymph capillary coming from this side, right? And these are carrying these lymph,
and all these lymph capillaries are combining together. सब lymph को लेके बाहर के डायरेक्शन में मूव कर रही है. इनसे क्या फ्लो कर रहा है? lymph फ्लो कर रहा है like this way, and they are combining to form the lymph vessels. ये combine करके क्या बना रही है? lymph vessels. These are lymph capillaries. और ये सारा lymph इन lymph capillaries से, lymph vessels से होता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, coming out from the cells or tissues. In between these lymph vessels, ये lymph vessels जब move करती है तो इन lymph vessels के बीच में इस तरीके से swollen structures present है. A lymph vessel is there, in between again a node like structure is there, then the lymph vessel is moving. तो लगातार जब ये lymph vessel move कर रही है तो बीच में इस तरीके से थोड़ा सा structure swollen appear होता है. This structure is known as lymph node. What is this? Lymph node. This is one lymph node, this is second lymph node, and this is how lots of lymph nodes are present. अब lymph nodes में ऐसी क्या speciality है? Why these lymph nodes are present over here? These lymph nodes are having specific cells. They are having specific cells, and these cells are known as what? Lymphocytes. We talked about lymphocytes today. You understand what lymphocytes are? हमने आज ही lymphocytes की बात की थी. There are two. Yes, good. B lymphocytes and T lymphocytes किसके अगेंस्ट काम करते हैं? Working against antigen. हाँ, एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं. यहाँ पे बेटा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है. तो जैसे जैसे लिम्फ यहाँ से मूव करेगा तो जितनी भी ओल्ड या पुरानी सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, एंटीजेंस हैं, उनकी किलिंग कर देगा. इट इज डीलिंग विद डेड सेल्स एंड एंटीजेंस. सो यहाँ से जो ब्लड बाहर, लिम्फ बाहर मूव करेगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर क्लीनर because waste antigens have been removed. Again the lymphocyte has, this lymph node has come. Again some of the cleaning is going to be there. Again lymph is moving from this. So each time the lymph is crossing the lymph nodes, there will be cleaning, there will be removal of antigen from the lymph, and there will be removal of dead cells also from the lymph. Yes, बोलिए. बेटा लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है. WBC में लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है. क्या स्टेटमेंट है? लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC एंड दे आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स. कहाँ प्रेजेंट होती है? लिम्फ नोड्स में. जैसे जैसे लिम्फ नोड्स को क्रॉस करता जाएगा वैसे वैसे लिम्फोसाइट्स इसमें से वेस्ट, डेड सेल्स और एंटीजेंस को रिमूव करती जाएंगी. तो क्या फंक्शन कर रही है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ लिम्फ. व्हाट? हाँ, वेट अ मिनट. बोलो क्या कह रहे हो? कलरलेस दे रखा? नहीं बेटा, इट इज स्ट्रॉ कलर. कुछ बुक्स इसको स्ट्रॉ कलर लिखते हैं. स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है वेरी लाइट. इट इज ऑलमोस्ट पेल येलोइश कलर, या स्ट्रॉ कलर लाइट कलर का होता है. बिल्कुल कल टी लिम्फोसाइट्स बेटा ब्लड में नहीं होती हैं. ये सेल्स और टिश्यूज के बीच, टिश्यूज में होती हैं. ठीक है. टी लिम्फोसाइट्स सिर्फ सेल्स और टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती हैं. ब्लड में सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और वो ब्लड कैंसर को कंट्रोल नहीं कर सकती है. हाँ हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, वो नहीं डील करती है उससे. ठीक है. तो लिम्फ क्या होता जाएगा? क्लीन होता जाएगा. और ये लिम्फ वेसल जाके कहाँ ओपन हो जाएगी? इन अ ब्लड वेसल.
और क्लीनिंग के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, हार्मोन, सबको वापस से कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा? ब्लड वेसल्स में, और वो टिश्यूज को इजीली सप्लाई हो जाएगा। कहाँ हुआ लिम्फ नोड में मटेरियल इकट्ठा? लिम्फ नोड में तो सिर्फ वेस्ट का रिमूवल हुआ, बाकी तो लिम्फ आगे की तरफ मूव ऑन कर गया। लिम्फोसाइट्स बेटा इनगल्फ कर लेती हैं और डिग्रेड कर देती हैं, यहाँ कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा। They will engulf all the material and they will degrade it completely. भी एंटीजेंस को डिग्रेड करने का फंक्शन करती है। बॉडी में सिर्फ एक सेल या एक पार्ट नहीं है जहाँ एंटीजेंस की किलिंग होती है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ एंटीजेंस के साथ डील किया जाता है। नॉट सिंगल स्ट्रक्चर इज देयर। This is what I am saying. These lymphocytes are engulfing and degrading those particles. You are not listening me fully. पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो। एक सेकंड पहले ये बात बता के हटी हूँ बेटा, ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं और डिग्रेड कर देते हैं। जाएंगी कहाँ? वो दैट इज रिमूव्ड, कंप्लीटली रिमूव्ड। सो दिस इज व्हाट लिम्फ इज। फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पर जो WBC प्रेजेंट है वो टिश्यू स्पेसिस के बीच में जो एंटीजेंस है और डेड सेल्स है उनके रिमूवल में फंक्शन करती है, राइट? एंड जो इंपॉर्टेंट मटेरियल लीक आउट हो गया था जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, उसको वापस से कहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है? टू द ब्लड सप्लाई, एंड अगेन दे आर प्रोवाइडेड बैक टू द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। लिम्फ WBC वेस्ट को रिमूव करती है, एंटीजेंस को किल करती है, राइट? यस। कहाँ स्पेस? स्पेसिस होते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड कैपिलरीज में स्पेसेस होते हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे? हाँ ब्लड क्यों नहीं निकलते बेटा? देयर शेप एंड साइज डज नॉट अलाउ देम टू कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। WBC की शेप अमीबॉइड होती है, वो इजीली अपनी शेप को चेंज कर लेता है, इसलिए वो लीक आउट हो जाती है। RBC और प्लेटलेट्स की शेप उनको लीक आउट होने में हेल्प नहीं करती है। Yes, their shape. I am talking about their shape. I'm not talking about their size. I am saying their shape doesn't allow them to come out. Shape, not size. ठीक है? उनकी शेप्स अलाउ नहीं करती हैं। ये इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं बिकॉज अमीबॉइड शेप के हैं, इसलिए लीक आउट हो जाते हैं और वो लीक आउट नहीं हो पाती है। दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू आज एपिथेलियल टिश्यू करवा देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड हमने प्लांट्स में किया था एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है that protects the outer surface of the plant. Just like that, epithelial tissue covers our body, covers the surface of the body, right? It's not moving.
सेकंड बेटा। ओके सुन लो, ये हैंग हो गया है, ये नहीं चल रहा है। व्हाट हैपेंड? ओके नाउ इट्स वर्किंग फाइन। इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। outer surface of the body plus what? Plus the internal organs of the body. हमारी बॉडी की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका अपर सरफेस किससे मिलके बना है? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है, ठीक है। और हमारे जो आउटर सरफेस है वो भी किससे कवर्ड है? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है, ठीक है। एंड द फोरमोस्ट फंक्शन, वन important function that is always going to be there is protection. yes, anything that is covering the surface from the outside, तो वो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज बनाती हैं, और अगर एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन में फंक्शन करता है, दैट मींस ऑल द सेल्स शुड बी क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। एग्री? कोई भी स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव तो तब होगा जब सारी सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन में प्रेजेंट होंगी। So here all the epithelial cells are closely packed to each other. Yes, their shape can be any. They are of different shapes. We will see कि epithelial cells की shapes के basis पे हम उसको different type के tissues में divide करते हैं, हम उसको categorize करते हैं। Shapes can vary, but all the cells are closely packed to each other. If they are closely packed to each other, then I can write they are having no intercellular space. सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, इसके नीचे बेसिकली एक मेम्ब्रेन, एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन लाई करती है। all the epithelial cells, they are lying on a very thin membrane, and this membrane is known as, yes, basement membrane. So these are going to have nucleus in the center, tightly packed to each other, and they are always lying on the basement membrane. हमेशा किससे लाई करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डायरेक्टली ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? ओवर हियर कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, एडिपोज, एरियोलर, वी विल टॉक अबाउट दोस टिश्यूज आल्सो। हमारी स्किन जो है आउटर सरफेस है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली। यस, यस बेटा। हाँ, मैम से आगे बढ़ो। नहीं नहीं, कोई स्पेस नहीं है। मैंने तो उसको थोड़ा दूर इसलिए दिखाया है ताकि वो इजीली आपको विजुअलाइज हो जाए। दैट इज जस्ट लाइंग बिलो द एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स। ओके, इसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ तक तो ब्लड सप्लाई आती है, ब्लड वेसल्स आती हैं। फिर इनको कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? डिफ्यूजन से। कनेक्टिव टिश्यू से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर काम होकर जाती है, एपिथेलियल सेल्स के पास आ जाती है, डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अब आई वाज सेइंग देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी हैव कैटेगराइज्ड देम, उनकी शेप कैसी है, ठीक है। और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। वी आर हैविंग स्क्वेमस एपिथेलियम, yes, cuboidal epithelium, columnar epithelium, columnar epithelium, ciliated and glandular epithelium. So these cells, all these epithelium are going to have
different shapes, they are going to be present in different parts of the body, and they are going to perform different functions. एक चीज हमेशा याद रखो, सी एपिथेलियल टिश्यू वी ऑल एग्री दैट दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, बट वो जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसा फंक्शन इंटरनल ऑर्गन्स कर रही हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय दीज एपिथेलियम आल्सो। अगर ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, व्हाट इज, हाँ, we are coming to each and every epithelium one by one. I have just written the names of the epithelium. Stratified, so we'll talk about stratified epithelium. Okay, I am saying beta, these epithelium are present in the internal organs of the body, so their functions are going to resemble with these organs. ये जिस इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इनका फंक्शन भी किससे रिजेंबल करता होगा, उन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग रिजेंबल करता होगा। हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे एंड वी विल सी हाउ देयर फंक्शंस आर वेरिंग। फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिथेलियम। हाँ, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम जितनी भी एपिथेलियम्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम है, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। आइदर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल एपिथेलियम or stratified epithelium. What is the meaning of simple or stratified epithelium? See, if single layer of epithelial cell is there, single, I have made a single layer of epithelial cell over here. अगर epithelial cell की एक ही single layer arrange है, only means one single layer of epithelial cell is there, so that type of epithelium is known as simple epithelium. ठीक है, इफ आई से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स आर देयर। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, अगेन सिंगल लेयर ऑफ, हाँ, क्योंकि यस, क्योंकि ये इसी शेप की होती है। सिलिएटेड क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनार भी हो सकती है, ग्लैंडुलर भी सेम वे। शेप्स तो एक्चुअल में ही तीन है, बाकी तो ये फंक्शन के बेसिस पर है। जो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, दे आर हैविंग मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, मल्टीपल लेयर ऑफ epithelial cells, more than one layer of epithelial cells are there. See, if I draw one layer, over this another layer is present, below also another layer is present, so this is what, multiple layer of epithelial cells. So wherever multiple layer of epithelial cells is there, that is known as stratified epithelium, and where simple, or you can say single layer of epithelial cells is there, that is known as simple epithelium. This is the difference between simple and stratified epithelium. Okay, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. We will talk about squamous epithelium. स्क्वैमस एपिथेलियम में जो बेटा सेल्स प्रेजेंट होती है, these no, कैसी होती है, फ्लैट होती है. फ्लैट सेल्स आर देयर, ऑलमोस्ट इरेगुलर शेप्ड सेल्स आर देयर. फाइन. और अपीयरेंस कैसी होती है, लाइक दिस वे, ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर हम देखेंगे तो फ्लैट सेल्स होती हैं, randomly shaped cells हैं, like this way they are appearing. All are having their nucleus. So these are actually flat cells having nucleus, cytoplasm, everything. ठीक है? Yes. दोनों हो सकती हैं. A squamous epithelium can be simple squamous epithelium. मैंने बेटा बहुत सारी लेयर्स बनाई हैं.
and if more layers are there, that is going to be stratified. ठीक है, आप जितनी ज्यादा लेयर्स बनाते जाओगे वो कैसी होंगी, stratified होंगी. If you are seeing one single layer only, that cells are there, only one single layer of cells, that is going to be simple. ठीक है, so simple squamous epithelium is there. Simple squamous epithelium बॉडी के कौन से पार्ट्स में देखने को मिलती है? Which parts are going to have simple squamous epithelium? Lining of blood vessels, outer covering of blood vessels, alveoli of lungs. You understand alveoli of lungs? Lungs are having balloon like structure, जिनमें एयर फिल होती है. लंग्स के पास इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जितना भी हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो सारी गैसेस लंग्स में फिल्ड हो जाती है, राइट? लंग्स में कहाँ फिल्ड होती है? इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में फिल हो जाती है, एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई. तो इन एल्वियोलाइज की जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? Simple square, yes, simple squamous epithelium, right? हाँ बिल्कुल बर्स्ट हो सकते हैं बेटा एल्वियोलाई. जो ज्यादा स्मोक करते हैं, मोर स्मोकिंग, मोस्टली उनके एल्वियोलाइज बर्स्ट हो जाते हैं. बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. हाँ देखो, एक से तो कुछ नहीं होता. लंग्स आर हैविंग मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, लेकिन अगर ज्यादा बर्स्ट होंगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप, ईसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप, दिस यू नो. ठीक है, और हमारी जो माउथ है, इन सब की लाइनिंग किससे मिलके बनी हुई है? मतलब आउटर बाउंड्री सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है. ठीक है, एक ही लेयर होती है, क्योंकि ज्यादातर ये सब्सटेंसेस किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में. एल्वियोलाइज किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रही है? गैसेस का. ब्लड तो बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. माउथ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है. तो जहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पर ऑलमोस्ट कैसी मिलती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अब multiple layer of cells are there, so multiple layers of cells are going to be important for providing protection. ज्यादा सेल्स होंगी तो उनका ब्रेकडाउन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, right? So these multiple layer of cells are going to be present in our skin, because skin is an outer protective structure. But I will talk one by one ना. जब बाकी का टर्न आएगा तो आई विल टेल कि स्टमक में कौन सी प्रेजेंट है. पहले एक को तो कंप्लीट हो जाने दो पूरा. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन. अरे एल्वियोलाइज में गैसेस फिल्ड है, तो यहाँ से गैसेस कहाँ चली जाएंगी? ब्लड कैपिलरीज में. गैसेस को ब्लड ले जाएगा ना अपने साथ, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया. अब ब्लड कैपिलरीज जो गैसेस लेके गई है वो किसको दे देंगे? टिश्यूज और सेल्स को प्रोवाइड कर देंगे. दैट इज अनदर ट्रांसपोर्टेशन. ये भी सारे स्ट्रक्चर्स किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. व्हाट? बिल्कुल. सीमेंट सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस बेटा जो इन दो सेल्स को एक दूसरे के वेट presentation has to. Okay, this whole thing is lost. Okay. It's not working. So I have written stratified squamous epithelium. Yes, skin. यहाँ पर ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स होती है, और ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स क्या प्रोवाइड करती हैं?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जहाँ भी वियर एंड टियर के चांसेस होते हैं, चोट लगने के चांसेस होते हैं, राइट, वहां पर कैसी प्रेजेंट होंगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होंगी। तो गैसेस एक्सचेंज या मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ये एपिथेलियम। और सेकेंडली दीज आर हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ और यू कैन से प्रोटेक्शन टू द आउटर बॉडी पार्ट्स। सेकेंड, अरे एल्वियोलाइज आर इन्वॉल्व, अभी बता के हटी हूँ बेटा, एल्वियोलाइज में गैसेस फिल्ड होती हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल मींस क्यूब लाइक, राइट, सो सेल्स कैसी होंगी, यस क्यूब लाइक सेल्स आर देयर, जो हमें देखने में कुछ ना कुछ स्क्वायर शेप की सेल्स दिखाई देती है, अगर मैं साइड व्यू देखूं तो वो सेल्स कैसी होंगी, इस तरीके से स्क्वायर शेप की सेल्स होंगी, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ओवर हियर, क्यूबॉइडल सेल्स आर गोइंग टू बी देयर, ऊपर से थोड़ा सा पॉलीगोनल शेप देती है एंड द साइड व्यू इज गोइंग टू बी स्क्वायर शेप, सो क्यूबिकल सेल्स आर देयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगेन वी आर हैविंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, it is present in kidney tubules, kidney tubules like you understand ureter, kidney is there and there is a tube like structure that is coming out from the kidney, this is ureter, kidney is involved in urine formation, तो किडनी में जितना भी यूरिन बनता है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द किडनी विद द हेल्प ऑफ दिस यूरेटर, ठीक है, तो ये क्या है, किडनी ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम किडनी, it is present in germinal cells or germ cells, or you can say the structures which are responsible in formation of gametes, gametes बनाने में जो structures involved होते हैं वहां पर present होती हैं germinal layers of genitals, या easy word लिखूं make you understand, so you can say present in structures or parts of the body which are responsible for gamete formation, that is more easy to understand. In males also and in females also gamete formation के structures में involve होती हैं, they are present in salivary glands, thyroid glands, thyroid gland neck region में present होती है, salivary gland कहाँ present होती है, mouth, they are present in thyroid gland in neck, pancreatic duct, pancreas understand, say this is digestive system, stomach, and below the stomach a leaf like structure is present that is known as pancreas, तो पेनक्रियाज के पीछे जो ये छोटा सा पाथवे होता है जिससे पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स को कहाँ रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले सेक्शन में इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। So these are the places in our body where this simple cuboidal epithelium is present. Stratified cuboidal epithelium, ये कहाँ प्रेजेंट है, they are present in the ducts of mammary glands. Mammals are having mammary glands, the glands which are responsible for secretion of milk. जो mammals होते हैं वो अपने young ones को किससे feed करते हैं, with their own milk, and the milk is produced in the mammary glands. तो mammary glands के ducts में क्या present है, stratified, even pancreatic duct is having both simple and stratified, so the yes IgA होता है, तो pancreatic, salivary glands, gastric glands, जो कि sorry gastric gland, no gastric glands, sweat glands, our skin is having sweat glands,
जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम दी स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल epithelium. So over here stratified cuboidal epithelium is present. Yes. By their shape and the presence in different parts. दोनों ही तो अलग शेप की हैं और अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है। वेरी बेसिक थिंग, हमने इनको शेप के और फंक्शन के बेसिस पे ही तो डिफरेंशिएट किया हुआ है। और इन दोनों को ही नहीं, सभी एपिथेलियम को हमने इनकी शेप और फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया है। Squamous epithelium, we have talked about them beta, protection, mechanical strength, exchange of gases and other material, यही तो फंक्शन थे स्क्वैमस एपिथेलियम के। it is also involved in protection. सारी एपिथेलियम प्रोटेक्शन तो प्राइमरी फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। साथ साथ किस में इन्वॉल्व है, सिक्रीशन, क्योंकि आपने जितनी भी ग्लैंड्स लिखी हैं वो सारी ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, सिक्रीशन ही तो करती हैं। ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सिक्रीशन। सो हियर दीज एपिथेलियम आर इन्वॉल्वड इन secretion, gamete formation, because these are present in those parts which are involved in gamete formation. तो secretion में involved है, gamete formation में involved है, absorption also to some extent, excretion also, because kidneys किससे deal करती है, excretion, removal of urine from the body is known as what, excretion। ठीक है, तो ये किससे डील कर रहा है, एब्जॉर्प्शन से, एक्सक्रीशन से। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन द स्टार्टिंग। ये जिस भी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है इनके फंक्शंस वैसे ही हो जाते हैं। देखो, अगर ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो किसमें इन्वॉल्व है, सिक्रीशन में। उन पार्ट्स में प्रेजेंट है जो गैमीट फॉर्म कर रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। किडनी ट्यूब्यूल्स दोनों फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट आल्सो, सो दे आर इन्वॉल्वड इन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन आल्सो। देखो, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सामने लिखा है मैंने किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी के नेफ्रॉन्स, यस नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वो भी किडनी का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां पर दोनों चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन भी और एक्सक्रीशन भी, यूरिन फॉर्मेशन भी। यस, तेज बोलो बेटा, स्पीक लाउडली। गेटिंग यू बेटा। हाँ, नेफ्रॉन ऑफ किडनी तो समझ आया, हाँ नेफ्रॉन ऑफ किडनी के लिए है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली वो नहीं सुनाई दी। लाइनिंग ऑफ किडनी नहीं, लाइनिंग ऑफ किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, white fibers, we will talk about collagen fibers when we will talk about loose connective tissue। फिलहाल कोलमनार एपिथेलियम करते हैं, जब लूज कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे तो कोलेजन फाइबर्स की बात करेंगे। कोलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम में जो सेल्स होती है बेटा वो लंबी होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड कॉलम शेप्ड सेल्स लाइक दिस वे। Again lying on a basement membrane, always basement membrane is going to be there। ठीक है, तो सेल्स कैसी है, टॉल है, लंबी सेल्स है, पिलर लाइक सेल्स आर देयर। ठीक है, लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू
यस, विड्थ कम होती है, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी सेल्स होती हैं और यही बीच में ऐसे न्यूक्लियस लाई करता है। यस बेटा, सिलोमिक फ्लूइड, इट्स सिलोमिक फ्लूइड, नॉट कोइलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड। हमारी बॉडी की कैविटी होती है सिलोम, our body cavity means that space of our body where all the internal organs are present। हमारी बॉडी में जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक कैविटी के में प्रेजेंट है एंड दैट कैविटी इज नोन एज सिलोम। और उस कैविटी में जो फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज नोन एज सिलोमिक फ्लूइड। उस बॉडी में कहीं भी ड्राई कंडीशंस नहीं होती, एवरीवेयर फ्लूइड इज देयर, so that is coelomic fluid that is present in the body cavity। Columnar epithelium, where the simple columnar epithelium is there। Stomach, you were talking about stomach, the lining of stomach is made up of columnar epithelium, lining of intestine is made up of columnar epithelium and gallbladder। stomach और intestine समझते हो, gallbladder भी समझते हो। there is an important organ of our body that is known as liver। लिवर के अंदर एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लैडर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिवर, दैट इज गॉल ब्लैडर। bile secretion is done by liver and this bile is stored in this gall bladder। gall bladder bile secrete नहीं करता है, वो bile को स्टोर करता है। stratified columnar, they are present over the epiglottis, एपिग्लोटिस को कवर करती हैं। अंडरस्टैंड एपिग्लोटिस। विंड पाइप इज देयर, विंड पाइप के ऊपर ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जो उसको ढक कर रखता है, कवर करके रखता है, सो दैट फूड इज नॉट गोइंग टू एंटर इनसाइड आवर विंड पाइप। दैट स्ट्रक्चर दैट इज कवरिंग द विंड पाइप, ये किसकी कवरिंग है? इट इज द कवरिंग ऑफ, बेटा ये मूव करता है, इट मूव्स। केशव, केशव class is almost over beta। cover, this is flap like, I am saying this is flap like structure। flap like structure means it can open and close easily, ये vibrate होता रहता है, air can easily move inside। epiglottis air के flow को prevent नहीं करता है। so here the columnar epithelium are present। function क्या करती है? intestine that is involved in absorption, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, दैट व्हाट आई सेड। if you are talking about epithelium, without any hesitation there is one function that is always going to be there and that one is protection। yes, stomach की what, हाँ सिक्रीशन, सिक्रीशन की बात कर रही हूँ। स्टमक की लाइनिंग्स क्या करती हैं बेटा? सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग आल्सो सिक्रीशन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो these are the protection, absorption, secretion, these are the functions of columnar epithelium। ये columnar epithelium के functions हैं। we are left with two epithelium, ciliated and glandular epithelium। we'll talk about these epithelium in class, okay।